شخص کی بھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نے ہمت نہیں آئی, اس نے اپنے ارادے میں کمزوری نہیں آنے دی, اس نے اپنے اسٹیپ کو روکا نہیں. اس نے کہا کہ اگر مجھے نو ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں ملا, مجھے نعمتیں کم ہیں لیکن میں سب کچھ کر سکتا ہوں. فردر میڈیٹیشن جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بولنگ ورڈ ہیں جو کہ ہماری لائف کو انسپائر کرنے کے لیے, چینج لانے کے لیے کافی ہوتی ہے. اگر ہم کسی ایک سے بھی فالو کرنا شروع کر دیں, کسی ایک کو بھی سمجھنا شروع کر دیں, تو ہم اپنی لائف میں چینج لا سکتے ہیں. ان میں پہلا موٹیویشن ہے کہ پیریڈ آف گیٹنگ آئے ایک گیٹنگ اسٹارٹ ہے. ہر کام کا پیریڈ اس کے اسٹارٹ کرنے میں آپ کام کو اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ جب تک آپ کام کو اسٹارٹ نہیں کریں گے, کسی چیز کو اسٹارٹ نہیں کریں گے, آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ وہ آپ سے نہیں ہے. بلیم نوبڈی, ایکسپیکٹ نتھنگ, ڈو سمتھنگ. کسی کو بلیم نہ کریں, کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, خود کر کے دکھائیں. کیونکہ آپ میں ایبلٹی ہے, صرف آپ کو اینالائز کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی ایبلٹی ہے جو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ جب تک ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے آپ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. ان ادر ورڈز یو ہیو ٹو بی بگ. اف یو تھنک اسمال یو آر گوئنگ ٹو بی اسمال. بڑا کرنے کے لیے بڑا سوچنا پڑے گا, اور جب تک چھوٹا سوچتے رہیں گے, کم سوچیں گے, وہیں پر رہ جائیں گے جہاں پر پہلے لوگ ہیں, وہیں پر رہ جائیں گے جہاں دنیا آپ کو روم کر چلی جائے گی. ٹائم گزر جائے گا, آپ وہیں پر رہ جائیں گے. ٹو بی پریپیئرڈ از ہاف دا وکٹری. وکٹری کی ہاف وکٹری آپ کو پریپیئر ہونے میں ہے. آپ ایگزام کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ ریس کے لیے, کمپٹیشن کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو ہاف وکٹری آپ کے پریپیئر ہونے میں ہے, اور ہاف اس کو کرنے میں ہے. تو ہاف وکٹری جو آپ کے پریپیئر ہونے میں ہے, تو وہ آپ کو کسی نے نہیں کری. تو اسٹارٹ تھنکنگ لائک ونر. ہمیشہ ونرز کی طرح سوچنا ہے. ایسے سوچیں کہ آپ ونرز ہیں, آپ ون کر سکتے ہیں. کبھی لوزرز کی طرح نہ سوچیں, کیونکہ نیگیٹو سوچیں گے نیگیٹو رہ جائیں گے. بیکاز یو آر آلویز ون ٹرائی اوے فرام چینجنگ یور لائف. آپ اپنی لائف کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کامیابی سے صرف ایک اسٹیپ دور ہوتے ہیں, ایک سیکنڈ دور ہوتے ہیں. وہ اسٹیپ آپ نے لے لیا تو کامیاب ہو گئے, وہ اسٹیپ آپ نے نہیں لیا تو وہیں پر رہ جائیں گے. کیونکہ فیئر کلز پیپل مور دین دیٹ. انسان کا سب سے بڑا مشکل, انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا ڈر ہوتا ہے, جو اس کو وہ قدم اٹھانے نہیں دیتا جو وہ اٹھانا چاہتا ہے, اس کو کامیابی لانے نہیں دیتا, وہ جو اس کی منزل ہے اس منزل کی طرف بڑھنے نہیں دیتا. کیونکہ وہ ہر وقت اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. وہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں, یہ کسی اور کا کام ہے. وہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ایبلٹی نہیں, لیکن وہ ایبلٹی انسان میں ہے. کیونکہ اگر خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے کوئی ایبلٹی بنائی ہے, کوئی اس کو ایبلٹی دی ہے. تو اگر وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, اگر ڈاکٹر عبدالکلام یہ کر سکتا ہے, اگر علی محمد نوازی یہ کر سکتا ہے, اگر ڈاکٹر عبدالقدیر یہ کر سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر بھی وہ ایبلٹی ہے. اگر لڑکے کر سکتے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک چیز ہماری اس کو ٹوٹل اسٹرینتھ 100 کی ہے, ٹوٹل آبادی جو ہے پاکستان کی 100% ہے. 100% میں سے 52% آف وومین, only 48% آف مین. So out of 52% women, 4% women are working in the field, while remaining 48% are confined into the walls. اور وہ کام نہیں کر رہی, وہ دیواروں کے اندر, چار دیواری کے اندر سے بیٹھی ہے, کیونکہ وہ بھی چینج نہیں کر رہی. ہمیں اپنے ملک کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہمیں ایز اے ہول پوری نیشن کی ضرورت ہے. ہمیں صرف لڑکوں کی نہیں, ہمیں لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے. ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے عورتوں کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ انسان کو اگر خدا نے انسان میں دو کیٹیگری بنائی, مرد اور عورت بنایا, تو سب کو ایکویلٹی دی ہے. تو آپ بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ شاید وہ ایبلٹی آپ کے اندر ہے. اور ہمیں وہ 4% نہیں چاہیے, ہمیں 52% چاہیے وومن جو کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلے. ہم اس ملک کی تقدیر کو بدلتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ایگزامپل دیکھیں, پاکستان میں اور ایگزامپل دیکھیں, تو میجورٹی جو کامیابی حاصل کی ہے وہ وومن کی آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نصیب نہیں کرنا, ہمیں محنت کرنی ہے. ہمیں اپنے اندر سے وہ ڈر نکالنا ہے جو پہلا اسٹیپ اٹھانے میں ہمیں رکاوٹ کریٹ کرتا ہے. کیونکہ جب آپ منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو منزل آپ کے نزدیک ہوتی آتی ہے, آپ کے نزدیک چلتی ہے, لیکن آپ کو دور کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے آنے میں, راستے میں آنے والی رکاوٹیں آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ منزل دور ہے, لیکن آپ اس کو غلط پرسپیکٹو سے دیکھیں, آپ نیگیٹو وے سے دیکھیں, آپ اس کو پازیٹیو وے سے دیکھیں کہ رکاوٹیں یہ بتا رہی ہیں کہ منزل اب دور نہیں ہے, منزل اب نزدیک ہے, تو آپ منزل تک پہنچے. یہاں پر ایک بہت اچھی ایگزامپل مجھے یاد آ گئی کہ ایک بادشاہ تھا جس کو یہ پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ بہت سارا خزانہ ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں. اپنی فوج کو لے کر چلا گیا, وہاں پر جا کر اس نے گڑھا کھودا, سرنگ بنائی, 1000 میل کی اس نے سرنگ بنائی, لیکن خزانہ نہیں نکلا. ایسا کیا ہوا, ہمت آ گیا,
उसने कहा यहाँ पे खजाना नहीं है, चला गया अपने दोस्त को, काम को वहीं पर रोक दिया। उसी जगह पर कुछ ऐसे बाद एक और बादशाह आया, उसने आकर वहीं से गड़ा खोलना शुरू किया, लेकिन अभी उसने पहला ही हिट किया था वो खजाना नहीं मिला। दिस इज द रियल स्टोरी दैट शोज के हमने क्या किया, हिम्मत आ गई, क्योंकि मंजिल एक स्टेप आगे थी और हमने उसको समझा कि रुकावटें हैं तो बहुत दूर है, लेकिन मंजिल बहुत नजदीक है। तो जब भी रास्ते में रुकावटें हैं तो एक चीज समझ लें कि मंजिल अब दूर नहीं है, मंजिल नजदीक है। सिर्फ आपकी सोच आपको और तरफ लेकर जाती है और आपने हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, पैशन नहीं करना है, रुकना नहीं। तो क्विटर नेवर विन एंड अ विनर नेवर क्विट। जो लोग हार जाते हैं, मैदान छोड़ जाते हैं, वो कभी जीतते नहीं है। जीत उन्हीं की होती है जो मैदान में डटे रहते हैं, जो एक बार हारते हैं दूसरी बार आते हैं कि कोई बात नहीं, पिछली हाथ में हमें एक्सपीरियंस मिला, नेक्स्ट हाथ हम जीतेंगे। नेक्स्ट आर यू सक्सेस एंड हैप्पी एंड सक्सेसफुल? अगर नहीं तो देन चेंज योर लाइफ, चेंज द स्टाइल ऑफ लाइफ, चेंज द डायरेक्शन दैट यू आर फॉलोइंग। जो डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हैं उसको चेंज कर लें। उसके लिए पहला स्टेप आपने गोल डिटर्मिनेशन करनी है, गोल देखना है आपकी मंजिल की तरफ, क्योंकि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं और हमेशा सोचना नहीं है, करके दिखाना है। क्योंकि जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं वो हमसे मुख्तलिफ नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह नहीं है। डिफरेंस क्या है? इरादे का। उन्हें इरादा था, हमारे अंदर अभी तक वो इरादा करना नहीं होगा। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट हमारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं आ सकता। भूल जाए कि पास्ट या प्रेजेंट हमारी कामयाबी को रोक देगा और हमें आगे बढ़ना है, हमें मेहनत करनी है, जिद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, इरादा बनाना है। जब इरादा कर लिया तो उसके ऊपर स्ट्रांग हो जाए। कोई भी बोलता है, कोई भी है, क्यों नहीं है ना, गो ऑन डू इट राइट नाउ। अभी सोचना, कल नहीं करना, आज करना, आज अभी करना है, तो हमें कामयाब होकर दिखाना है। अब जो भी हाल है अब नहीं जवाब नहीं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप जवाब नहीं देंगे, इसमें शर्म नहीं करनी, यही बात है। आपका एक्सपीरियंस होगा। इमेजिन करें कि जब आपकी कामयाबी आपके सामने होगी, आप कामयाब होते हैं तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, किस तरह का फील कर रहे हैं। हम लोगों से पूछें तो इस वक्त टॉप करते हैं, इनका नाम लिया जाता है, उनकी जाके फीलिंग्स को पूछें। वो लोग खुश हैं क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलती है, जब उनकी कामयाबी होती है तो वो खुद अपने आप को अच्छा फख्र महसूस करते हैं। उनके टीचर्स उनसे अलग सी नजर से देखते हैं, उनके पेरेंट्स उनको सर पे बिठा के रखते हैं, उनका मुआशरा उनको एक और निगाह से देखता है, उनके दोस्त एक और नजर से उनकी तरफ देखते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको उनके लिए रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड नहीं है, अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, बट यू हैव यू नो हाउ यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी। सिर्फ आप लोगों को उसको यूटिलाइज करने का तरीका आना चाहिए, मौके हाथ से ना जाने दें, मौके बार बार नहीं मिलने। आज कुछ नहीं किया तो कल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कल भी आप यही सोचेंगे कि मैं नेक्स्ट डे करूँगा, नेक्स्ट डे कर लूँगी। ये नहीं करना, जो काम करना है अभी करना है, किसी पर डिपेंड नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, सब कुछ खुद करना है। और आज ये इरादा कर लें, आप लोगों की आज इरादे की जरूरत है। आज आपने इरादा कर लिया, उसके ऊपर डिटर्मिनेशन हो गई, उसके ऊपर एक्सीलेंस कर ली, उसको हैबिट बना ली, आप नाकाम नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज भी नहीं, ये उन लोगों का चैलेंज, उन लोगों का दावा है, लोगों के वर्ड हैं जो कामयाब हो चुके हैं, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। वो अब कहते हैं कि कामयाबी को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, अगर आपका इरादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ आपका इरादा हर चीज को शिकस्त दे सकता है और हमें ये चीज करके दिखाना है। ओके
डिफरेंट हमें ये भी पता चल गया कि कोटेशन हमारी लाइफ को कितना इंस्पायर कर सकते हैं। आपने कुछ कोटेशन देखे भी और आपको रिमेंबर भी नहीं। फर्दर हमारे पास वो वे क्या है, क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो हमें सब कुछ पीछे से मोटिवेशन मिलती है। अब रास्ता सीधा है लेकिन समटाइम हम रास्ते इधर हो जाते हैं, समटाइम इधर हो जाते हैं। उसकी रीजन क्या है, हम डगमगा क्यों जाते हैं, सिर्फ हमें रास्ता प्रॉपरली पता नहीं। एक ऐसी एग्जाम्पल कि आप लोगों को कह दिया जाए कि बेटा भागना है, अब भागते जाएंगे, स्पीड लगाएंगे, दौड़ते जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहुंचना कहाँ पे है और आप कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे, पूरी जिंदगी भागते रहेंगे। और क्या होगा उसका एंड पे, जब आपको मंजिल नहीं मिलेगी तो डिमोटिवेशन होगी, आप डिसहार्ड हो जाएंगे, और जब डिसहार्ड होंगे फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन का तायन करना है, उसको तय करना है कि डायरेक्शन क्या है, जाना किधर है। मैंने आज मैट्रिक में भाग लेने आते हैं तो मैंने करना क्या है। बहुत 99% स्टूडेंट का मैट्रिक पास होने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है। अब वो क्या करते हैं कि जिसने डॉक्टर बनना है उसको किसी ने कह दिया कि बेटा डॉक्टर जो है ना वो इस वक्त बनना मुश्किल है, वो कहता है ठीक है मैं अब ICS करूँगी, वो कहता है मैं कंप्यूटर साइंस में कुछ और कर लूँगी, मुझे अगर केमिकल में एडमिशन नहीं मिला तो मैं इलेक्ट्रिकल कर लूँगी, जहाँ पे एडमिशन मिला मैंने कर लेना, मैंने सिंपल BA कर लेंगी। वो आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो डिजायर है, आप जो बनना चाहते हैं वही बने, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उसमें है। उसके लिए आपने अपनी डायरेक्शन आज ही सेट कर रही है। कोई भी आके आपको डाइवर्ट करे, आपने डाइवर्ट नहीं किया। अपने रास्ते अपनी मंजिल का तायुन खुद करना है, क्योंकि वो मंजिल आपकी है, वो किसी और की नहीं है। क्योंकि जिसकी मंजिल है वही उसको बेहतर जानता है, वही उसके लिए स्ट्रगल कर सकता है, दूसरा उसके लिए स्ट्रगल नहीं करेगा, दूसरा उसके लिए सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास दूसरों के सोचने के लिए टाइम नहीं है। अपने लिए सोचे और खुद के लिए करें। तो फर्स्ट स्टेप है कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन इरादा करना है। पहला स्टेप इरादा, सोच लें कि आज हमने अपने आप को तब्दील करना है, सोच लें कि आज हमने ये इरादा कर लिया कि इस बार हमारे 9th और 10th के रिजल्ट 950 से कम नहीं मार पाएंगे। इरादा कर लें कि आज आपने उन कॉलेजेस में जाना है जहाँ पे आप चाहते हैं, और आपके उस इरादे से आपको कोई नहीं हो सकता। सेकेंड, एक्सीलेंस, अपने आप को पॉलिश करें, अपने स्किल्स एबिलिटीज को एनहेंस करें। उसके लिए आपको एवरी डे फेस अ न्यू चैलेंज, एवरी डे डू समथिंग न्यू, जो आपने पहले कभी नहीं की उसको करें। वो आपको सिखाएगी कि नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे फेस करना है। आप अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट ना करें, क्योंकि पुरानी गलतियां रिपीट करने से आपको पछतावा होता है और नई गलतियां रिपीट करने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ नया करें, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल एक छोटी सी और है, आप यहाँ पे बल्ब आपको नजर आ रही है जो कि टॉप है, अगर आप इसको देखिए, आपको आज लाइट की जरूरत है, जब तक आपको लाइट नहीं मिलेगी आप यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन ये बनाया किसी को पता है क्या देता है, उसकी हिस्ट्री क्या थी? उस शख्स ने 3000 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, मतलब नहीं 3000 उसके स्टूडेंट ने, उसके शागिर्द ने कहा कि सर आप छोड़ दें, बहुत हो गया, अब ये बल्ब नहीं बनेगा, अब हमें फजूल टाइम वेस्ट करेगा। उसने कहा कि मैंने 3000 टाइम ये सीख लिया कि इनसे बल्ब नहीं बनता, और की तरीके से